Welcome students, welcome. Today we are going to take a objective test series because we already know that there is a huge possibility of online examination with MCQ type. So that we have to prepare with this kind of preparation like objective MCQ type questions, answers, practice type. So starting with the second chapter, that is very important, DC generator. I am going to cover some very important, that is definitely some question definitely will comes from that topic. So without wasting a time, REE 112 is our course, electrical machines and power utilization. In that course we are taking chapter number second for complete objective test series. So this is our first objective in front of you. I will simultaneously I will cover the concept also, as well as what is the correct answer. You can, without any preparation, you can, if exposed to the examination, that will be beneficial for you. So just go through this video. So the first objective is the basic requirement. They are asking that ki basic requirement kya hoti hai? Requirement, first objective is that of the DC armature winding. Is that, so there will be, you will have four options. I can also give you just see that the basic requirement of the DC armature winding is that it must, okay, so the question is that it must, is that it must what it must first option is there, a closed one, a closed one, ठीक है. Second, B, a lap winding, lap wind. I will explain the concept behind this common question. Why I have said it's common question, because you see that the question asking point of view is also very common. They are just going to check your common sense and common basic knowledge. You see that basic, yes, the word basic, either A or B. So what will happen? You have to prepare with armature winding. What is the armature winding? I will explain. If this is the poles north and south, and in that poles you will have some conductor, that is armature conductor, and to connect this armature conductor, that means the your EMF is inducing in this conductor. जो भी करंट बनेगा वो ये आर्मेचर कंडक्टर के अंदर बनेगा. तो ये जो कंडक्टर का बेसिक रिक्वायरमेंट होगा कि ये क्लोज लूप पे होना चाहिए. If it is open loop, then your EMF is not going to induce in that. Very common sense है, very basic है. तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि ये जो वाइंडिंग होगी, आप लैप वाइंडिंग रख सकते हैं, बेसिक वेव वाइंडिंग रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम. बट बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि ये क्लोज होना चाहिए. सो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट लाइन पे आपको क्लिक करना है, और सॉरी ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, अ क्लोज्ड वन इज द आंसर. आई थिंक यू गॉट दैट. सेकेंड वी विल सी. ओके, सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट मैंने आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दिया कि आर्मेचर वाइंडिंग जो होगा वो अंदर होगा, और जो फील्ड वाइंडिंग होगा यहाँ पे जो मैग्नेट आपके होते हैं उस मैग्नेट्स के ऊपर फील्ड वाइंडिंग होती है. एकदम बेसिक है ये कॉन्सेप्ट कि फील्ड वाइंडिंग कहाँ पे होती है सर? मैग्नेट के ऊपर होती है. और जो आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ पे होती है? वो कंडक्टर के ऊपर होती है, जो कि इंड्यूस करने वाला है करंट को, EMF को इंड्यूस करने वाला है. तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा. सो वी विल गो फॉर द सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड MCQ टाइप क्वेश्चन. A wave winding must go, a wave winding must go at least, at least how much around, that is they are question in the numbers, we have to write down that answer. How much times the armature before
it closes back, it closes back। सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप जो भी वेव वाइंडिंग लगाने वाले हो, वेव वाइंडिंग और आर्मेचर लैप वाइंडिंग का डिफरेंस मैंने लेक्चर में भी पढ़ा दिया था आपको, और मैं अभी बता भी दूंगा। लेकिन बिफोर दैट हम एक कॉन्सेप्ट देखते हैं कि ये आर्मेचर है, ठीक है। तो इसके ऊपर जब हम वेव वाइंडिंग लगाएंगे तो जो स्टार्ट से जो क्लोज होने वाला है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमेशा 2 रिवोल्यूशन कंप्लीट होने चाहिए। दैट मीन्स तभी जाके आपका वेव वाइंडिंग में जो आपका जो मोटो है वेव वाइंडिंग का, तो वेव वाइंडिंग का मोटो है कि आपको जो ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है, वो ईएमएफ जो है, तो जो हमें पावर इंड्यूस करना है, तो कंडक्टर के अंदर जब हम वेव वाइंडिंग को रैपिंग करेंगे तो 2 पैरेलल लेंस हमें निकालना है। इसीलिए हमें ट्वाइस यहाँ पे आर्मेचर के साथ उसे अराउंड करना है। दैट मीन्स अगर आप हर एक लेन, 2 लेन बनेगी यहाँ पे, एक लेन बनेगी पहले लेयर से और दूसरी लेयर पैरेलल होनी चाहिए, वो बनेगी दूसरे सेकेंड वाले लेयर से। तो ऐसे 2 लेन हमें बनाना है। इसीलिए आप फॉर्मूला भी अगर देखोगे तो Z/2 हमें यूज करना होता है जब हम वेव वाइंडिंग को, वी आर थिंकिंग अबाउट अ वेव वाइंडिंग, देन वी हैव टू गो फॉर दैट कनेक्शन इन अ सीरीज व्हेन यू विल हैव 2 लेन पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ पे देखो क्लियरली बोला है कि 2 लेन हम देख रहे हैं, इसलिए आपका ऑप्शन देखते हैं। अभी ऑप्शन में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कितने बार रैपिंग होना चाहिए। यहाँ पे सिंपल सा सवाल है कि वेव वाइंडिंग आर्मेचर को कितने बार रैप करना है हमें। लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग 2 टाइप की वाइंडिंग होती है। लैप वाइंडिंग में क्या होता है, विल एक्सप्लेन। लैप वाइंडिंग जो होती है वो, दैट इज एवरी कॉइल जो होती है वहां पे 2 लेयर, दैट इज आल्सो हैव अ 2 लेयर, वन टाइप ऑफ वाइंडिंग विद 2 लेयर, बट लो वोल्टेज के लिए यूज होता है वो। और यहाँ पे हाई वोल्टेज के लिए वेव वाइंडिंग यूज किया जाता है। यहाँ पे आपको जो कॉइल्स है वो इन द फॉर्म ऑफ वेव फॉर्म अरेंज करनी है। यहाँ पे लैप में लैपिंग होता है, यहाँ पे वेव के टाइप में फॉर्म होने चाहिए, लाइक दैट आपको रैपिंग करनी है कि वेव फॉर्म होगा, कि आप जब यहाँ पे रैप करोगे तो आपको इस टाइप में आपको लेयर्स बनाने की वेव फॉर्म होना चाहिए। वेरी सिंपल। ऑप्शन देख लेते हैं। द फर्स्ट ऑप्शन इज वंस, सेकंड ट्वाइस, थर्ड थ्राइस, एंड द लास्ट ऑप्शन इज ऑब्वियसली 4 टाइम्स। तो यहाँ पे टाइम्स आप लगा दे सकते हो, आपको कंसेक्यूटिव जो जो सब्सिक्वेंट वर्ड होगा, वंस, वन टाइम्स, ट्वाइस टाइम्स, थ्राइस टाइम्स, 4 टाइम्स। तो यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर किया है 2 लेने, ट्वाइस होना चाहिए आंसर, तो यहाँ पे हम टिक कर देंगे। दी फाइनल आंसर इज, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और डेफिनेटली विल कम। पहला ऑब्जेक्टिव क्लोज होना चाहिए, सेकेंड सर वेव वाइंडिंग के ट्वाइस रैपिंग होना चाहिए, 2 बार रैप होना चाहिए। तो इस प्रकार इन दोनों भी objective, you can take a screenshot and you can make a PDF form of that objective. So it will be very beneficial for you at the time of preparation. Okay, guys. So we will go for the next one. Number third. Be ready for that. So what is objective number third? The DC armature winding. I already told you कि कंडक्टर के ऊपर, मतलब जो आर्मेचर कंडक्टर होगा जो घूमेगा, रोटेटिंग पार्ट के ऊपर जो वाइंडिंग होगी वो आर्मेचर वाइंडिंग होगी। आपको किसी ने भी इन योर लाइफ टाइम अगर पूछा आर्मेचर कॉन्सेप्ट क्या है, तो आप एक ही बता दो कि जो घूमता है पार्ट उसके ऊपर वाली वाइंडिंग को आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं। दो, द आर्मेचर, द डीसी डायरेक्ट करंट आर्मेचर वाइंडिंग in which coils sides are a pole pitch apart, दूर होती है, is called, देखो
is called what kind of winding? Very important question and definitely will come in the objective section in your MCQ examination. So if you take that DC armature winding जो कि coils side are poles which pitch are apart is called as simple is called as a full pitch. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा वाइंडिंग आई विल टेक मल्टीप्लेक्स। मल्टीप्लेक्स में क्या होगा लेयर्स के ऊपर अल्टरनेट लेयर्स होंगे मल्टीप्लेक्स में। फ्रैक्शनल पिच में क्या होगा गैप होगा फिर फ्रैक्शनल पिच होगा गैप होगा फिर फ्रैक्शनल पिच होगा। उसके बाद में फुल पिच में क्या होगा एक ही रोटेशन होगा लेकिन कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कॉइल साइड्स आर अ पोल पिच अपार्ट, इसे कहते हैं फुल, इसे कहते हैं फुल पिच वाइंडिंग, इज कॉल्ड एज अ फुल पिच वाइंडिंग व्हिच विल बी योर answer in the given question. You just will have some objective like some option like that. You see that option क्या क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है मल्टीप्लेक्स, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है फ्रैक्शनल पिच, every word will have a consecutive word that is a pitch supplementary word। तो सी ऑप्शन है फुल पिच and D will have full pitch। So this should be a full pitch because आपके आपको बहुत सारे वेबसाइट्स पे गलत आंसर्स होते हैं। तो ये एक डेजिग्नेटेड आंसर है, एक करेक्ट आंसर ऑथराइज्ड आंसर है कि डीसी आर्मेचर का जो वाइंडिंग होगा वो अगर पोल से थोड़ा भी अपार्ट होता है तो उसे फुल पिच बोलते हैं। थोड़ा भी दूर होता है अपार्ट फ्रॉम अ पोल, अगर पोल के क्लोज होगा तो वो पोल पिच होगा, पोल के थोड़ा दूर होगा तो फुल पिच होगा, पोल से थोड़े थोड़े अंतर पे गैप गैप होगा तो फ्रैक्शनल होगा, और मल्टीप्लेक्स मतलब कंटिन्यू पोल को रैपिंग होगा तो उसे मल्टीप्लेक्स। लाइक दैट देयर इज a concept you can have an answer of full pitch here। This should be your final answer। Okay, so we will go for the next objective, that is objective number 4। The for making a coil, simple question है, for making अगर आपको कॉइल बनानी, दो कॉइल होती है प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल। यहाँ पे हम डीसी जनरेटर में अगर देखेंगे तो आर्मेचर कॉइल और फील्ड कॉइल दो टाइप की कॉइल्स होती है। फॉर मेकिंग अ कॉइल इक्वल टू पोल पिच, कॉइल जो होगी जो कि कॉइल का जो स्पैन होगा वो स्पैन मतलब लेंथ जो होगी वो इक्वल टू पोल की लेंथ मतलब पोल पिच इन द आर्मेचर वाइंडिंग, इन द आर्मेचर वाइंडिंग। ऐसा अगर क्वेश्चन आता है इन द आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ डीसी जनरेटर, the back pitch of the winding must be equal to number of, yes बैक पिच जो होगी क्योंकि हमें छोड़ना है एक बार अगर रैपिंग करने के बाद हम बैक पिच देते थोड़ा गैप छोड़ते पीछे, तो वो जो बैक पिच होगा वो इक्वल टू क्या होगा इक्वल टू नंबर्स ऑफ, यहाँ पे ऑप्शन हमें दिए हैं नंबर, so you will have option like A, B, C and D। so if you go for that यहाँ पे कम्यूटेटर्स जो होते हैं क्योंकि आप देखो बैक पिच मतलब एंड पार्ट आपका, मैंने आपको बताया था अगर हमने देखा यहाँ पे एक हमने सिंगल लूप टाइप डीसी जनरेटर का एक कॉन्सेप्चुअल प्रिंसिपल डायग्राम देखा था, उसमें हमने क्या देखा था कि जब ये सर्किट कंप्लीट होता है तो यहाँ पे एंड में ब्रशेस के साथ जो भी होता है यहाँ पे हमें क्या करना होता है कि कम्यूटेटर लगाना होता है। कम्यूटेटर क्या करेगा कि वो करंट को कन्वर्ट भी करेगा और रिसीव भी करेगा, जो ब्रश के तरफ से आएगा करंट उसे कम्यूटेटर क्या करेगा रिसीव करेगा और उसे कन्वर्ट कर देगा, एसी का डीसी में करेगा कम्यूटेटर। तो यहाँ पे ये जो कम्यूटेटर होगा ये एंड पिच पे कनेक्टेड होता है, इसलिए जितने ज्यादा आपके नंबर ऑफ कम्यूटेटर्स होंगे पर पोल, एक पोल पे मतलब एक पोल पे अगर आपने दो कम्यूटेटर लगा दिए तो फिर आपको यहाँ पे इक्वल उतनी बैक पिच की लेंथ लेनी पड़ेगी। मतलब क्वेश्चन क्या है कि आप बैक पिच की लेंथ कितना लोगे, तो कितना लोगे बैक पिच का लेंथ इक्वल टू नंबर ऑफ द कम्यूटेटर।
जितने आपको कम्यूटेटर लगाने एंड में, क्योंकि बैक पिच कहाँ होगी, एंड में, और एंड में कौन सा पार्ट होता है, कम्यूटेटर। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सर ने पढ़ाया है, दे द सर टोल्ड दैट कि कम्यूटेटर इज द एंड पार्ट ऑफ द आर्मेचर वाइंडिंग। तो आपको आर्मेचर वाइंडिंग में ही लगाना है ना ये जो आर्मेचर वाइंडिंग बैक पिच। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करो, बैक पिच आखिरी का पार्ट है, कम्यूटेटर पे डिपेंड होगा, वाइंडिंग पे डिपेंड होगा। तो क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं, पहला ही ऑप्शन कम्यूटेटर दिख जाएगा आपको, कम्यूटेटर, इफ दे विल पुट लाइक दैट ऑप्शन। अगर ऑप्शन चेंज सफल होते हैं, डेफिनेटली ऑप्शन सफल होते हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। कम्यूटेटर कहीं पे भी दिखा तो आपको टिक करना, नंबर ऑफ कम्यूटेटर। सेकंड आपको वाइंडिंग एलिमेंट, कि आपको कितने वाइंडिंग एलिमेंट्स यूज करना है। वाइंडिंग एलिमेंट अगर दो होगी तो दो बैक पिच रखना है, नहीं, एलिमेंट्स वाइंडिंग एलिमेंट पे डिपेंड नहीं होता है। आर्मेचर कंडक्टर्स पे डिपेंड होता है, नहीं, आर्मेचर कंडक्टर्स नहीं, कम्यूटेटर्स। यहाँ पे फोकस करना है, कंडक्टर कम्यूटेटर्स में कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पे कंडक्टर्स को निगलेक्ट करके कम्यूटेटर्स को टिक करना है। क्यों करना है सर, आपने बताया आखिरी पार्ट का। और पैरेलल पाथ, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। पैरेलल पाथ नेट पे देखने का काम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे वेबसाइट्स में कंफ्यूजन टाइप क्वेश्चन आंसरिंग होते, जो कि लास्ट टाइम आपने सभी क्वेश्चन सही करने के बावजूद भी, डिस्पाइट यू करेक्टेड ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम द नेट, यू डिड नॉट गेट आउट ऑफ मार्क्स। व्हाई? बिकॉज इन द इंटरनेट you cannot have 100% authorized solution. Make sure that despite you will have some authorized book, क्योंकि क्या होता है कि हर एक जो भी पीपल होता है, जो भी टीचर होता है, उसका अलग अलग ओपिनियन से वो जो वेबसाइट्स पे रेटिंग के अनुसार आंसर्स को ऊपर दिखाते हैं। अगर गूगल में आप डालोगे तो जो सबसे ज्यादा रेटेड आंसर से जो कि व्यूड हुआ है या फिर लाइक पे हुआ है, वो आपको पहले दिखेगा, वो आप पिक कर लेते हो। द नेचुरल सेंस इज दैट यू विल बिलीव इन दैट, यू डोंट हैव अदर ऑप्शन आल्सो। आपको वही ऑप्शन है गूगल पे डालना है, जो पहला दिखेगा उसको। लेकिन अगर आपको मैं पढ़ा रहा हूँ कि फॉर मेकिंग एन कॉइल दैट पिच इज इक्वल टू नंबर ऑफ कम्यूटेटर, अगर यहाँ पे कंडक्टर्स भी दिख रहे हैं तो आपको कम्यूटेटर पे ही टिक करना है, then you will get out of marks as compared to other student। कि सर हमने लास्ट टाइम तो अच्छे पेपर दिए थे, एटलीस्ट वन पेपर में आउट ऑफ आने चाहिए थे, तो भी नहीं आए हैं, बिकॉज दिस रीजन कि इंटरनेट पे हम हमेशा 100% श्योरिटी नहीं हो सकती। उसके लिए हमें थरो नॉलेज या फिर थरो सोर्स की जरूरत होती है, जो कि मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ मेरे लेवल पे। ठीक है, तो ये एक आपको देख लेना है सही से कि कौन सा ऑप्शन हमें करेक्ट पिक करना है। ये फोर्थ हमने कवर कर लिया। So without wasting a time, we'll go for another uh, objective type question. Question number 5 will go. So just wait for a minute. कर लेते हैं। मैं कॉन्सेप्ट भी साइड में आपको क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि व्हाट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट इज देयर। सो फिफ्थ क्वेश्चन हम देखते कि द प्राइमरी रीजन फॉर मेकिंग कॉइल स्पैन, ये प्राइमरी जो रीजन होता है, ठीक है, एक देखते हैं क्वेश्चन हम स्लॉट्स। ये क्वेश्चन आ सकता है in case of 4 pole 35 slots DC armature, (180 electrical degree), ये एक्चुअली न्यूमेरिकल दिखने में न्यूमेरिकल है, बट हम इसे लेवल पे सॉल्व करेंगे।
coil span will be obtained, how many occupy how many slots, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन हम देखते हैं क्विकली, क्योंकि थेरोटिकल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट नहीं है इसके बिहाइंड, हमें सिर्फ फिगर ध्यान में रखना कि व्हाट इज दैट फिगर, क्योंकि आप सॉल्व करने जाओगे तो यू डोंट विल हैव टाइम। 1 to 10 के बीच में स्लॉट्स आएंगे, या 1 to 9 के बीच में आएंगे, या 1 2 to 11 भी हो सकते हैं स्लॉट्स, या फिर 3 to 12। ये एक कॉइल के जो स्लॉट्स होती है वो कॉइल के स्लॉट्स पे क्वेश्चन है। तो 1 और 9, 1 और 9 आपको पिक आउट करना है यहाँ पे। 1 and 9 यहाँ पे आप पिक कर सकते हो इजीली। यू हैव टू रिमेम्बर, ओके, बिकॉज ये जो क्वेश्चन होते होंगे ये डिफिकल्ट होंगे जब हम एक्चुअली में इन्हें एक्सपोज करेंगे। तो अभी देखो 6 नंबर का क्वेश्चन है, the sole purpose of commutator in a DC generator. Yes, this is very important question. I very much I can very much appreciate this question, because you just see that concept wala question है, the sole purpose of कम्यूटेटर। मैंने आपको जो पार्ट्स पढ़ाए थे डीसी जनरेटर के, वहां पे फंक्शन भी बता दिया था। अभी यहाँ पे सोल पर्पस क्या है डीसी जनरेटर का, ये देखेंगे। डीसी जनरेटर इज टू, ये देखो क्वेश्चन ऑप्शन है, ऑप्शन भी रिलेवेंट होने चाहिए। पहला ऑप्शन है इंक्रीज द आउटपुट वोल्टेज, इंक्रीज करने वाला क्वेश्चन से इंक्रीज द आउटपुट वोल्टेज। सेकेंड, and I will subsequently explain the option also कि ये ऑप्शन कब होगा। दैट डोंट वरी अबाउट इट, कॉन्सेप्ट जहाँ पे आएगा वहां पे मैं मेरा पूरा पोटेंशियल, पूरा नॉलेज आपको देने का प्रयास करूंगा। रिड्यूस द स्पार्किंग, सिली सिली वेरी सिली, रिड्यूस द स्पार्किंग, जिसे पता है कम्यूटेटर के बारे में वो इन चीजों पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करेगा। बेसिक पूछा है, सोल पर्पस क्या है मैंने आपको पहले ही बताया। इस पूरे वीडियो में आपने अच्छे से देखा होगा, तो मैंने 2-3 बार इस फंक्शन का रोल आपको बता दिया है कि कम्यूटेटर का रोल आपको ऑलरेडी प्रोनाउंस कर दिया है। आई ऑलरेडी टोल्ड दैट। सो प्रोवाइड स्मूथर आउटपुट, देखो ये वेरी यूजलेस है, प्रोवाइड स्मूथर आउटपुट, क्या होता है ये स्मूथर आउटपुट। थर्ड बी में अगर आप देखोगे तो कन्वर्ट, कन्वर्ट ये वाला आप पिक कर लोगे। इंड्यूस्ड, जो कि बनेगा, बनने वाला एसी को कन्वर्ट करना है इनटू डीसी में। तो सभी को पता है सर, आप हमेशा बोलते हो कम्यूटेटर का फंक्शन एसी टू डीसी, एसी टू डीसी। यस, तो वही इस एमसीक्यू का फाइनल आंसर भी होगा कि कम्यूटेटर का होल पर्पज है, सोल पर्पज है, होल एंड सोल पर्पज है टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी इन केस ऑफ डीसी जनरेटर। ओके, डीसी जनरेटर में जो ये पार्ट होता है, इन्वर्टर भी बोलते हैं बहुत बारी से, एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है ये। इसके बाद में और एक चीज मैं आपको बता दूंगा कि रेक्टिफायर भी एक डिवाइस होता है इलेक्ट्रिकल में, जो एसी का डीसी में कन्वर्ट करता है, प्योर डीसी में कन्वर्ट करता है। तो ये होता है फाइनल आंसर कम्यूटेटर का। तो इंक्रीज द आउटपुट वोल्टेज क्या होगा सर, किस टर्म के लिए ये वैलिड है? तो ये वैलिड है जब आप फील्ड वाइंडिंग बढ़ा दोगे, या फिर आउटपुट वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग आप बढ़ा दोगे, तो आपको आउटपुट वोल्टेज बढ़ेगा डेफिनेटली। आप जब सेकेंडरी वाइंडिंग पे फोकस करोगे तब आपको वोल्टेज ज्यादा चाहिए, तो सेकेंडरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ा दो आप, यू विल हैव लार्ज अमाउंट ऑफ वोल्टेज। जितने ज्यादा वाइंडिंग उतनी ज्यादा वोल्टेज आपको मिलेगी। रिड्यूस द स्पार्किंग एट द ब्रश, ये आपको बियरिंग करने वाला है, क्योंकि बियरिंग फ्रिक्शन भी रिड्यूस करेगा, स्पार्किंग, क्योंकि बियरिंग के ऊपर आप इंसुलेशन लगाओगे, वो इंसुलेशन भी आपका स्पार्किंग को रिड्यूस कर देगा। प्रोवाइड स्मूथर आउटपुट, ये ब्रश का फंक्शन है, मैंने तीनों भी फंक्शन बता दिए। ऊपर वाला वाइंडिंग का फंक्शन है, ये आपका बियरिंग के इंसुलेशन का फंक्शन है, और ये आपका ब्रश का फंक्शन है, जो कि स्मूथर आउटपुट बाहर फेंकेगा। तो ये ब्रश हो गया, ये फंक्शन हो गया आपका बियरिंग इंसुलेशन का, और ये होगा
आर्मेचर वाइंडिंग का। तो लास्ट वाला फंक्शन कम्यूटेटर का, इसलिए इसे हम पिक कर देंगे। वेरी क्लियर सेंस ऑफ नॉलेज। ओके गाइस, सो quickly take a screenshot. Make, I already told you, make a PDF of this all screenshot. Okay. Okay guys, so don't worry, we'll go for another object. Okay, you just will have, ये सब हम एक टिपिकल ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर रहे हैं। ये बहुत सारे ऑब्जेक्टिव अवेलेबल है, लेकिन जो आने वाले हैं डेफिनेटली वो वाले हम पिकअप कर रहे हैं यहाँ पे। अभी देखते हैं, इन केस ऑफ डीसी आर्मेचर, इफ हमें एक सिनेरियो हमारे सामने रखा है, इफ इन केस ऑफ डीसी आर्मेचर नंबर ऑफ कम्यूटेटर जो हो गए, नंबर्स ऑफ कम्यूटेटर अगर लेस या ज्यादा हो जाते हैं, देखो एक सिनेरियो हमारे सामने रख रहे हैं कि डीसी आर्मेचर में जब नंबर ऑफ कम्यूटेटर्स either less or more, either less or more, एक ज्यादा या एक कम हो सकता है, then नंबर ऑफ स्लॉट, यस, मैंने आपको बोला था कि नंबर ऑफ स्लॉट और नंबर ऑफ कम्यूटेटर इक्वल होना चाहिए, लेकिन समटाइम्स क्या होता है, ये कम या ज्यादा हो जाते हैं। तो दिस टाइप ऑफ वाइंडिंग, ये जो सिंप्लेक्स फॉर्म की जो वाइंडिंग होगी, इसे क्या कहा जाएगा? तो वेरी सिंपल है, जब ये पे डिफरेंस भी क्लियर हो जाता है, डीसी आर्मेचर नंबर्स ऑफ कम्यूटेटर आइदर लेस और मोर देन नंबर ऑफ स्लॉट, देन वाइंडिंग इज कॉल्ड एज, देन वाइंडिंग इज कॉल्ड, कौन सी वाइंडिंग होगी? पहला ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, लैप वाइंडिंग। सेकेंड वाइंडिंग मैं आपको दे रहा हूँ वेव वाइंडिंग। थर्ड मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ फ्रॉग लेग, फ्रॉग लेग वाइंडिंग, फ्रॉग जैसे लेग्स हो गए। और जो लास्ट ऑप्शन मैं आपको दूंगा, मल्टी इलेमेंट इलेमेंट। सो ये वाला इंपॉर्टेंट है कि लैप वेव फ्रॉग लेग करो। तो लैप वाइंडिंग तो नहीं होगा, क्योंकि वहां पे इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ कम्युनिकेटर्स, और नंबर ऑफ स्लॉट में फ्रॉग और मल्टी एलिमेंट में कोई रिलेशन नहीं। वेव वाइंडिंग में हमने देखा देयर इज अ रिलेशन बिटवीन वेव वाइंडिंग, कि यहाँ पे आप कम ज्यादा कर सकते हो, लैप में इक्वल होना चाहिए कम्युनिकेटर और नंबर ऑफ स्लॉट। ये देखो, नंबर ऑफ स्लॉट और नंबर ऑफ कम्युनिकेटर्स, ये दोनों भी इक्वल होने चाहिए, तब जाके आप लैप वाइंडिंग को टिक कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे लेस और ग्रेटर बोला है, तो यहाँ पे फाइनल आंसर वेव वाइंडिंग है। रेज योर हैंड, यू अंडरस्टैंड? This is a recorded session, you have to be consider that I am taking a live lecture. Okay, so next question हम देखेंगे 8 नंबर का, वेरी इंपॉर्टेंट, लैप वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग जो होगी आपकी, लैप वाइंडिंग इज सुटेबल फॉर, इज सुटेबल फॉर what kind of current, high current, low current, high voltage, low voltage, like that, ये क्वेश्चन है। एक तो करंट है डैश करके, फिर वोल्टेज है, या फिर हाई हाई होगा, लो लो होगा, डीसी जनरेटर में, इन डीसी जनरेटर। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है कि मैंने आपको बोला भी था कि डिफरेंस मैंने जब बताया कि लैप वाइंडिंग जो लो वोल्टेज के लिए होती, तो यहाँ पे आपको वोल्टेज तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे सर लो होगा, लेकिन करंट के मैंने, आप कंप्लीट वीडियो देख लो एक बार, लैप वाइंडिंग का मैंने कहीं ना कहीं तो बोला है कि लैप वाइंडिंग इज यूज फॉर लो वोल्टेज, यस और नो? तो हाई करंट और लो वोल्टेज शुड बी द फाइनल आंसर। यहाँ पे हाई, हाई ऑप्शन हो सकता है, हाई करंट हाई वोल्टेज। सेकंड, लो करंट लो वोल्टेज। थर्ड, लो करंट हाई वोल्टेज, ये रॉन्ग होगा, क्योंकि मैंने अभी भी बोला आपको वोल्टेज लो होना चाहिए, करंट हाई होना चाहिए, तभी आपको लैप वाइंडिंग यूज करनी होती है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन पिक कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली विल कम, यू कैन गेस दैट, आई कैन गेस दैट, ये वाला जो ऑप्शन होगा, हाई करंट और लो वोल्टेज, दिस कुड बी अ फाइनल आंसर इन दैट क्वेश्चन, सो यू हैव टू टेक अ स्क्रीनशॉट।
फॉर मेकिंग एंड नोट्स ऑफ 8 क्वेश्चंस। हम और भी क्वेश्चंस देखेंगे, डोंट वरी। कुछ न्यूमेरिकल्स जो इजीली सॉल्व होने वाले न्यूमेरिकल्स है वो भी हम देखेंगे। ओके गाइस, डोंट वरी, टेक। ओके, नाउ स्टार्टिंग विद द 9th क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट कि क्रिटिकल रेजिस्टेंस जो होता है डीसी जनरेटर में, वो किस चीज से आता है। ये जो रेजिस्टेंस होता है, दो प्रकार के रेजिस्टेंस, एक होता है लोड रेजिस्टेंस जो कि आपकी फील्ड वाइंडिंग में होगा, और एक होता है क्रिटिकल रेजिस्टेंस जो कि बहुत यानी जिसे आप लोड भी बोल सकते हो, क्योंकि वहां पे फील्ड वाइंडिंग का ही रोल आता है। तो मैं आपको बता देता हूँ द क्रिटिकल रेजिस्टेंस। क्रिटिकल रेजिस्टेंस इन डीसी जनरेटर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इज रेजिस्टेंस ऑफ, किस चीज का रेजिस्टेंस होता है, ये होता है रेजिस्टेंस ऑफ। आप ऑप्शन अगर रख लोगे सामने, तो पहला ऑप्शन आपको बता दिया है कि आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है क्या, ये नहीं, ये आपका कंडक्टर रेजिस्टेंस नहीं होता। सेकंड आपका ऑप्शन है फील्ड रेजिस्टेंस होता है कि यस इट इज द फील्ड रेजिस्टेंस। फील्ड के वजह से ही, जो फील्ड में आपको कंसेप्ट क्लियर कर देता है कि फील्ड क्या होगी, ये आपका आर्मेचर होगा। और जो भी स्टेशनरी पार्ट होगा आपका, जिस चीज में ये घूमेगा, फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ साउथ, नॉर्थ, यस नॉर्थ साउथ, तो ये जो अल्टरनेट घूमेगा, इस प्रकार ये जो रोटर घूमेगा, तो ये ये जो मैंने मैग्नेट्स लगा दिए यहाँ पे, तो ये इस चीज पे जो भी कॉइल्स होती है इसे फील्ड कॉइल बोलते हैं, जो कि रोटेट नहीं होगा। ठीक है? तो जब ये चीज रोटेट नहीं होगा, तब इसमें रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, ये जाके अपोज करेगा करंट प्रोड्यूस इन द आर्मेचर करंट। इस कारण हमें इसे क्रिटिकल रेजिस्टेंस बोलना पड़ता है। तो यू हैव टू क्लियर द कॉन्सेप्ट, यस और नो, क्लियर द कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे फील्ड पे आपको ठीक करना है, क्योंकि आपको मैंने कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि जो घूमेगा नहीं वो आपका फील्ड होगा, तो जो घूमेगा वो आर्मेचर होगा। लोड रेजिस्टेंस नहीं कह सकते इसे, रेजिस्टेंस लोड नहीं कह सकते। ब्रश का भी रेजिस्टेंस होता है, नहीं ये तो बहुत माइनर होता है, ये निग्लेक्ट करना होता है। क्यों निग्लेक्ट करना होता है, बहुत बार आई विल टेल यू दैट, मेरे बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर है कि 1 वोल्ट पर ब्रश दिया होता है। जो भी ब्रश का रेजिस्टेंस लॉस जो होता है ना, वोल्टेज लॉस, तो वोल्टेज लॉस ब्रश में 1 वोल्ट बहुत कम है ये। कि अगर मान लो कि 250 वोल्ट आपको मिल रहा है या फिर आप सप्लाई दे रहे हो, तो उसमें से सिर्फ 1 वोल्ट आपका चांस है ब्रश के कारण लॉस होने का, सिर्फ 1 वोल्ट, ज्यादा से ज्यादा 1 वोल्ट के बाहर आपको लॉस होगा, इसलिए इसे क्रिटिकल नहीं कहा जाएगा। मेक श्योर दैट। तो क्रिटिकल कहाँ पे, जहाँ पे ज्यादा लॉस हो रहा है, ये फील्ड वाला लॉस हो रहा है, यहाँ पे आपको फील्ड प्रेडिक्ट करना है एज ए आंसर। आई होप यू गॉट क्लियर द कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट एक छोटा सा न्यूमेरिकल ले लेंगे हम। सो एक न्यूमेरिकल हमारे सामने है। इन केस ऑफ इन ए 12 पोल, बहुत सिंपल है, जस्ट मल्टीप्लिकेशन का नाम है। 12 पोल ट्रिप्लेक्स, अंडरलाइन कर लो, ट्रिप्लेक्स के नीचे लैप वाइंडिंग में, ठीक है, लैप वाइंडिंग में डीसी जनरेटर, ठीक है। मैं बहुत बार सिंबल निकालता हूँ, लेकिन आप नॉट फैमिलियर विद दैट। तो डीसी जनरेटर, so of 100 ampere current, 100 ampere current, the rated current in RPM in armature, the rated क्या होगा, रेटेड करंट जो प्रोड्यूस होगा, ये तो पर होगा, पर
ईच पर कंडक्टर आप बोल सकते हो यहाँ पे कि एक कंडक्टर आपका 100 एम्पियर प्रोड्यूस कर रहा है। तो रेटेड करंट क्या होगा इन इन आर्मेचर, ठीक है। इन आर्मेचर आपका रेटेड करंट क्या होगा, तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर फिगर से 12 ट्रिप्लेक्स लेयर्स में है तो 12 के ट्रिप्लेक्स लेयर 12 मल्टीप्लाई बाय 3, ये टोटल कंडक्टर हो गए, कंडक्टर मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपको इजी कैलकुलेशन करना है, यू विल हैव फिगर लाइक you will have the rated current आपको अगर कैलकुलेट करना है तो you can multiply with 12 multiply with 3 multiply with 100 you will have 3600। तो ये ऑप्शन आपका कंफर्म है क्योंकि यहाँ पे 12 है, यहाँ पे ट्रिप्लेक्स है, ये टोटल कंडक्टर बन जाएंगे, एक कंडक्टर आपका 100 दे रहा है तो 36 कंडक्टर कितना देगा, ऑब्वियसली 3600। और क्लियर, यहाँ ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या है, वी विल सर्च फॉर द ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है 600, सेकंड ऑप्शन है 1200, देखो ऑप्शन भी कितने इंटरेस्टिंग है, 2400 एंड लास्ट ऑप्शन इज 3600। सो definitely I already calculated this numerical very easy, so you have to click on the 3600। okay, got clear। ये हमारा 10th लेवल का ऑब्जेक्टिव था। इसके बाद हम कि नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको कंप्लीट कर दूंगा ये, ज्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं, जो भी इंपॉर्टेंट है वो हमने लिए एंड और कुछ ऑब्जेक्टिव है जो कि मेरे सामने दिख रहे हैं वो एक कवर कर लेंगे, फिर देखते हैं बाद में। ओके गाइस, सो फास्टली राइट डाउन, टेक टेक अ स्क्रीनशॉट। क्योंकि में ही कॉन्सेप्ट क्लियर करना है हमें, ठीक है, तो वो इजी ये है कि हाउ टू क्लियर द कॉन्सेप्ट वेरी फास्टली। तो धीरे धीरे हम ऑब्जेक्टिव लेवल पे भी आ रहे हैं और कॉन्सेप्ट जितना हो रहा है कम समय में उतना हम क्लियर कर रहे हैं। So next objective is 11 number objective। You just see that objective must be the series filled short shunt DC generator। यहाँ पे मैंने क्लासिफिकेशन लिया है, उस क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर में हमने देखा कि द सीरीज सीरीज शंट सीरीज फील्ड शॉर्ट शंट डीसी जनरेटर is directly proportional to, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी आईएमपी। अगर आपको किसी पे डिपेंड नहीं होना है इस सब्जेक्ट के लिए तो आप सिंपली ये वीडियो को 2 बार देख लो, प्रोपोर्शनल टू, यू विल हैव दैट। डीसी जनरेटर पे जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो इसी वीडियो से आने वाले हैं, आई विल गिव गारंटी डोंट वरी। तो डायरेक्टली यहाँ पे थोड़ा चेंज हो गया क्वेश्चन, ईएमएफ इंड्यूस इज डायरेक्टली क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं। द सीरीज फील्ड शॉर्ट्स एंड डीसी जनरेटर इज एक्साइटेड बाय excited which current, ऑप्शन ए, सी और डी। ऑप्शन ए इज शंट करंट, सीरीज करंट, सीरीज नहीं है ऑप्शन में, आर्मेचर करंट, लोड, लोड एक्सटर्नल लोड होता है, ये एक्सटर्नल। ये दो लास्ट वाले ऑप्शन थोड़े एक्साइटिंग है बिकॉज आपको डिसाइड करना है कि किस प्रकार यहाँ पे डायग्राम में आपको बता देता हूँ। ऑलरेडी आई हैव टेकन दैट शॉर्ट शंट, हम देखेंगे शॉर्ट शंट। तो शॉर्ट शंट जो है कंपाउंड टाइप के जनरेटर में आता है, दो जनरेटर थे, एक सिंपल एक कंपाउंड।
तो जो एक्सटर्नल लोड पे डिपेंड होते हैं वो सारे के सारे कंपाउंड में आएंगे एक्सटर्नल लोड पे। दैट मीन्स व्हाट कि आप यहाँ पे आपका जनरेटर है, ठीक है। तो यहीं पे आपको सीरीज की वाइंडिंग लगा देनी है, ठीक है। और यहाँ पे जाके उस वाइंडिंग को क्या करना है, शॉर्ट कर देना। यहाँ से आपको शंट वाइंडिंग को रखना है, मतलब जो कि सीरीज में दिखेगी, पैरेलल नहीं दिखेगी क्योंकि ये कनेक्टेड है। इसके बाद में यहाँ पे आपको लोड लेना है। तो जो कि ये जो एक्साइटमेंट होगी शंट वाइंडिंग में, जो करंट इंड्यूस होने वाला है वो लोड के कारण होने वाला है, क्योंकि ये सारे के सारे जो भी जनरेटर है ना, ये एक्सटर्नली एक्साइटेड है। तो ये बात आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि सेल्फ एक्साइटेड और एक्सटर्नली एक्साइटेड में बहुत डिफरेंस है। ये सेल्फ एक्साइटेड है एक्चुअली, लेकिन लोड लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोड पे क्लिक करिए, ठीक है। तो लोड के कारण ही क्या होगा, जब आप लोड सप्लाई दोगे तभी जाके शंट वाइंडिंग में करंट इंड्यूस होगा, वो करंट आपको सीरीज वाइंडिंग में आएगा, तो जनरेटर में आपको वोल्टेज इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए जनरेटर। तो दिस इज द आपको करना है, तो वो भी करना है। तो फायदा निकाल लेते हैं शॉर्ट्स के लिए। तो कॉन्सेप्ट एक ही कि आपको क्या करना है, आपको इस जनरेटर को शॉर्ट कर देना। कि मान लो कि यहाँ पे हमने बीच में ऑब्वियसली जनरेटर का ये सिंबल होता है, यहाँ पे ये जनरेटर का सिंबल है। आप शॉर्ट बीच में शॉर्ट लाइन नहीं भी डालोगे तो आप फिर और एक काम कर सकते हो, यहाँ पे जाके आप यहाँ पे जाके आप सीरीज बाइंडिंग को रख देना, सीरीज बाइंडिंग। यहाँ पे आपको एज यूजल आपकी शंट बाइंडिंग, आपको अगर शॉर्ट नहीं देना बीच में तो भी आप यहाँ यही से शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये वाला देखो इस प्रकार फ्लोइंग चालू स्टार्ट होगा कि यहाँ पे आपको ये देखो यहाँ पे एक टर्मिनल होगा, यहाँ पे एक टर्मिनल होगा, इन दोनों के बीच में आपको शॉर्ट सर्किट करना है, मतलब शॉर्ट शंट करना है। तो यहाँ आर एस सी जो सीरीज वाइंडिंग है इन सीरीज विथ, तो देखो सीरीज में शंट के साथ जाने वाली है, तो इसलिए आप देख सकते हो कि ये सीरीज में लोड के साथ थी। तो लोड से इसे एक्साइटमेंट मिलेगा, इसे एक्साइटमेंट जो मिलेगा वो लोड के कारण मिलेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर यू हैव टू चूज ऑप्शन नंबर सी फॉर। Okay, guys, I hope you understand the concept. You have to go through these 11 objectives. Definitely one or two, three maybe from this. Don't worry. ठीक है, हमें टोटल 90 ऑब्जेक्टिव्स डील करना है, ठीक है। 90 ऑब्जेक्टिव हमें कितने मिनट्स में, 90 मिनट्स में क्लिक करना है गाइस। सो वेरी डिफिकल्ट टास्क होता है सर्च करना, कंफर्म करना। Don't worry, we will manage the time. Thank you, one and all.